हरे कृष्णा। तो आज इस्कॉन मंदिर, राधा गोविंद देव मंदिर रुक्मणी विहार में भक्ति चारू स्वामी महाराज का व्यास पूजा मनाया जा रहा है। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फंक्शन हो रहा है। ये प्यारा सा इस्कॉन राधा गोविंद देव जी मंदिर, ये उसका मेन एंट्रेंस, ऊपर फंक्शन चल रहा है। यहाँ प्रसादम प्रिपेयर हो रहा है। ये मैचलेस, ये प्रभु जी तिलक लगा रहे हैं। नरसिंह भगवान की जय। जय। About that occasion, the celebration. Actually, I started to celebrate my birthday as Prabhupada Memorial Festival instead of the regular custom in ISKCON of celebrating Vyas Puja. John JBC meeting is starting on the 14th and will go on till about 26th of this month. And then I'm going to go to Vrindavan and I want to spend the second half of the month of Kartik in Vrindavan. And right after that I'll go to America in November 20th. So in course of my travel, I look forward to seeing you all, and that's one of the reasons why I'm traveling, because I feel that it's very important that I meet you all and you all also meet me. That such a nice, young, educated, young Indian man had surrendered his life to Krishna consciousness. Must have been so much pleasing to Prabhupada. Says he was Bengali, very cultured Bengali. Who had been educated in the West. Most people went to the West to get educated so they could make a lot of money. But he gave that all up. He could have had a very lucrative career, I'm sure. He was very well educated, very organized, everything. But he fell in love with Srila Prabhupada and dedicated his life to Prabhupada's mission. So this must have been so pleasing for you. He was always begging everyone, please give me your son so I can train him in Krishna consciousness to preach.
as Mahaprabhu said, what is it? Bharata Bhumiti Janma Hindu. That anyone who's taken his birth in Bharat, then he should make his life successful by spreading Krishna consciousness. And now, in those days, India was considered a backward country. Even Prabhupada argued with Bhaktisiddhanta that how anybody's going to listen to our message of Mahaprabhu. We're a ruled country. So many wonderful devotees are coming and dedicating their life. And Maharaj dedicated his life. He did so many. Prabhupada must have been so pleased. And I don't know anyone else. He got all 3 initiations in one day. Diksha, Brahman, and Sannyas. I don't know anyone else who ever did that. And some of the devotees were a little concerned. He's a new man, probably. You're the new man. Because basically, people in Bharat. We're celebrating the 79th Heroes Day of His Holiness Bhakti Swami Maharaj. First time here. Thank you to Arjuna Hari Guru for allowing us to use these facilities. I was thinking of this verse, famous verse in the 5th canto. Yes, yasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaya gunastapti samaste suraha. Parao abhaktasya katau mahatmana manorathenasiti dhavato vayi. It, on the face of it, it looks like a very fanatical statement that only devotees have good qualities and non-devotees have no qualities. But the fact is that when you meet someone like Bhakti Charu Swami, then you can appreciate the truth of that statement. How does it work? The commentators on that verse explain that when the demigods have to administer our karma, we all know, anyone who has ever been through Saturn or Saraswati, you know very well what demigods are capable of administering with your karma. And some of them are very comfortable and some of them are very uncomfortable, but they just do their job. They're not really interested in a loving relationship with the conditioned souls whose karma they administer. But when the demigods come across a devotee who is so pure-hearted and सर्व पहले मैं गुरु महाराज जी का श्री चरण कमले दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उसके बाद समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण में वंदना करता हूँ। आज गुरु महाराज जी का व्यास पूजा है। आज सबका खुशी का दिन है, आज आनंद का दिन है। गुरु महाराज जी का व्यास पूजा 17 सितंबर को तो निकल गया, लेकिन मंदिर से सारे भक्त उज्जैन गया था, इसलिए आज के दिन चुन लिया। आज के दिन व्यास पूजा एक अर्जुन हरि प्रभु का मंदिर में बना रहा है। गुरु महाराज जी का साथ मेरा पहले दर्शन एवं श्रवण दोनों एक ही साथ में हुआ था सीधा मायापुर में। गुरु महाराज जी उसी टाइम बाहर से मायापुर में पधारे और उसी दिन ही शाम को भगवत गीता क्लास श्री श्री राधा माधव और भगवान नृसिंहदेव के सामने दे रहे हैं। मैं पहले गुरु महाराज जी का देखा नहीं, कोई सुना भी नहीं है।
जिस टाइम वैशासन में बैठा पहले शुरू किया, मंदिर का जैसा नियम है राधा माधव कीर्तन देके शुरू करता है। राधा माधव जिस टाइम शुरू किया, गला से जिस टाइम कीर्तन का आवाज इतना नरम और मधुर कंठ में निकल रहा है, मैं सोच रहा है कि महाराज कहाँ रहता है, इसको तो कोई दिन पहले देखा नहीं। लेकिन कीर्तन जितना ही आगे बढ़ते रहा, इतना ही मेरा आकृष्ट हो रहा है। उसी टाइम में भगवान नृसिंहदेव और राधा माधव के सामने मैं बोल दिया जे यही मेरा गुरुजी है, इसको भी मैं गुरु बनाऊंगा। धीरे धीरे भगवत गीता का जो श्लोक शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हम लोग के समझाया। समझने के बाद सबके पूछ रहे तुम लोग का हरिनाम सब ठीक ठाक हो रहा है ना? क्योंकि महाप्रभु हम लोग के हरिनाम देके दिया, हरिनाम ही सबसे। So, Vimal Krishna Prabhu asked me to speak in Hindi, so I beg forgiveness from devotees for English speaking. Hare Krishna. So, आज हम श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का आविर्भाव तिथि यहाँ मना रहे हैं। बहुत सारे गुरु महाराज के गुण हैं, बहुत सारी चर्चाएं हम वरिष्ठ भक्तों से सुन रहे थे, लेकिन जैसा श्री श्रीमद प्रभुदानंद सरस्वती महाराज बता रहे थे कि गुरु महाराज का एक विशेष टाइटल है, विशेष एक पदवी है, प्रभुपाद अगत प्राण। वो हमेशा प्रभुपाद के चिंतन में निमग्न रहते थे, हमेशा प्रभुपाद के विषय में सोचते थे। तो हम विचार कर रहे थे कि जब हम प्रथम बार गुरु महाराज के साथ वृंदावन में आए थे, दिल्ली से ड्राइव कर रहे थे, तो पूरा रास्ता गुरु महाराज बातचीत नहीं कर रहे थे। और जैसे वृंदावन में प्रवेश किए तो खिड़की से बाहर देख रहे थे सारा स्थान। तो हम लोग बड़े उत्सुक थे ये जानने के लिए कि गुरु महाराज क्या बोलेंगे, और उनके मुख से पहली बात यही निकली कि मैं प्रभुपाद के साथ ही पहली बार वृंदावन में आया। तो वृंदावन आने के बाद भी उनका चिंतन था केवल श्रील प्रभुपाद। एक भक्त ने उनसे पूछा कि महाराज आप जब प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक थे, उस समय जो सचिव की सेवा करते थे, उसमें और अभी में अंतर क्या है? तो गुरु महाराज ने बोला था, आई वॉज प्रभुपाद सेक्रेटरी, आई एम प्रभुपाद सेक्रेटरी एंड आई ऑलवेज रिमेन प्रभुपाद सेक्रेटरी। ये उनका विचार था, मैं हमेशा प्रभुपाद का सेवक रहूंगा। एक बार मायापुर धाम में इसी तरह प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि पर गुरु महाराज से पूछा गया कि आप प्रभुपाद के निजी सेवक थे, तो आपके पास क्या प्रभुपाद की कोई प्रसादी वस्त्र या कोई भी वस्तु है जो आप अपने पास रखे हैं? क्योंकि निजी सेवकों के पास ये सब वस्तुएं होती हैं। तो गुरु महाराज बोले, हाँ, मेरे हृदय में श्रील प्रभुपाद उनकी सारी वस्तुओं के साथ हमेशा हमेशा के लिए रखे हैं। ये उनका प्रभुपाद के लिए प्रेम है, हमेशा प्रभुपाद को गुणगान करने के लिए चिंतन करते हैं। हम लोग साउथ अफ्रीका केप टाउन में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किए थे, जहाँ पर 75% वहाँ के जो प्रमुख नेतागण वाइट्स वो सब आए थे। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था। और वो प्रोग्राम करने के बाद जब हम घर पर लौटे तो भक्त लोग गुरु महाराज का गुणगान कर रहे थे कि गुरु महाराज कितना सुंदर प्रोग्राम हुआ है, सब गुणगान कर रहे थे रात में 11 बजे तक। और फिर एक भक्त यूके से आए, उन्होंने बोला, गुरु महाराज हम आपके लिए एक स्पेशल अवार्ड प्रस्तुत करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन से, और वो अवार्ड हम आपको देंगे क्योंकि आपने इतना प्रचार पूरी दुनिया में किया है। तो गुरु महाराज तुरंत उनको बोले, चेक करो कि क्या ये अवार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने अपना देह त्याग किया हो। तो व्यक्ति ने गूगल में चेक किया, बोले हाँ दिया जा सकता है। तो बोले पहले वो अवार्ड प्रभुपाद को दिया जाना चाहिए, हम उसकी क्या लायक हैं। और रात्रि में, उसी रात्रि में जब अपने कक्ष में गए, लाइट्स वगैरह ऑफ किए, हम गुरु महाराज के पैर दबा रहे थे, चरण दबा रहे थे, तो गुरु महाराज अपने आप से बोलते हैं कि जब प्रभुपाद अफ्रीका आए थे तो प्रभुपाद खुश नहीं थे। प्रभुपाद बोले, डिड आई कम टू अफ्रीका टू मीट इंडियंस, वी आर लोकल अफ्रीकन्स।
तो प्रभुपाद अब खुश नहीं थे क्योंकि स्थानीय अफ्रीकन लोग नहीं आए थे, लेकिन आज के प्रोग्राम में क्योंकि अफ्रीकन लोग आए हैं, प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो गए। ये हमारी इस प्रचार की सफलता है। ये उनका सतत चिंतन प्रभुपाद की सेवा के लिए था और उन्होंने जो आखिरी समय में अपनी अंतिम लीला दिखाई वो भी प्रभुपाद की सेवा के लिए ही, क्योंकि जब प्रभुपाद अस्वस्थ थे, प्रभुपाद ने बोला था, ए सोल्जर नेवर डाइज ऑन बेड, और वही चीज गुरु महाराज के हृदय में बड़ी गहराई से उतर गई। तो अंतिम लीला में भी उन्होंने वही सिद्धांत दिखाया जो अंतिम समय में वे स्वयं पाश्चात्य जगत में गए। जिस तरह प्रभुपाद की जाने की इच्छा थी, प्रभुपाद लंदन से वापस आ गए थे और उसी आदर्श को पालन करते हुए गुरु महाराज अमेरिका गए। प्रचार करते करते उन्होंने अपना अंतिम आदर्श स्थापित किया। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कि वो सबसे उत्तम भक्त है जो दूसरों को हरिनाम कराए। और विश्व में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं हुआ कि कोरोना काल में सभी लोग अपने घर में बैठे थे और 18 दिन तक, जब तक गुरु महाराज अस्पताल में थे, हर मंदिर, हर भक्त, हर घर में गुरु महाराज के उद्देश्य से कीर्तन हो रहा था। तो अपनी अंतिम लीला के माध्यम से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध करके गए, हरिनाम करा करके गए। ये उत्तम भक्त का लक्षण है। और गुरु महाराज ने जब देह त्याग किया 4 जुलाई 2020 को, गुरु महाराज के बप्पू को मायापुर तक लाने के लिए लगभग 9 दिन का समय लगा। 9 दिन में जब गुरु महाराज का बप्पू मायापुर धाम पहुंचा, भक्त लोग बड़े आश्चर्य में थे कि गुरु महाराज को जब स्पर्श किया समाधि के लिए, गुरु महाराज का शरीर एकदम कोमल था और पद्मासन में बैठ करके गुरु महाराज को समाधि दी गई। ये आश्चर्य की बात है। 9 दिन के बाद किसी व्यक्ति का शरीर ऐसा हो, इसका मतलब महाभागवत है, उनका चिन्मय शरीर था। और क्योंकि प्रभुपाद के लिए उनका पूरा जीवन था, जिस दिन गुरु महाराज को समाधि दी गई उस दिन 13 जुलाई थी, जिस दिन प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की थी। प्रभुपाद के लिए उनका प्रेम था। गुरु महाराज हमेशा हमें बताते थे 3 प्रमुख उपदेश जो उन्होंने प्रभुपाद से लिए, और हमेशा हर व्यास पूजा पे, प्रभुपाद के आविर्भाव पे, प्रभुपाद के तिरुभाव पे हमेशा हमें याद दिलाते थे। तो आज हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि 3 उपदेश हम भी स्मरण रख सकें। नेवर लीव इस्कॉन, फॉलो द अथॉरिटी लाइन एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। ये 3 उपदेश हमेशा गुरु महाराज बोला करते थे। इस्कॉन छोड़ के कभी नहीं जाना। इस्कॉन के जो मैनेजमेंट है, कर्तृपक्ष है, उनको पालन करना और आपस में एक साथ समन्वय बिठा करके प्रभुपाद की सेवा करना। जय श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की। Across two platforms. So when they saw these 2 platforms, Lord Shiva pays obeisance to these 2 platforms. And then Bhagavati asked that, why are you making obeisance to these ordinary platforms? So Lord Shiva said that this one, there was स्वामी महाराज की। आज का दिन बड़ा पावन पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि आज हम महान वैष्णव, गुरु, आचार्य, महाजन, महात्मा, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य, परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का गुणगान स्मरण कर रहे हैं। हम इस सभा में सुनते आ रहे हैं पूज्य दीनबंधु प्रभु, पूज्य मुकुंदत्त प्रभु, परम पूज्य भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति गौर नारायण स्वामी महाराज, परम पूज्य प्रबोधन सरस्वती महाराज जी और अन्य वैष्णव, महान वैष्णवियों से भी सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज वो वैकुंठ के सदस्य हैं, वैकुंठ मैन है, इस्कॉन मैन है, प्रभुपाद मैन है और प्रभुपाद जी के अति प्रिय हमेशा रहे।
एक छोटा सा लीला जो हम प्रभुपाद जी के जीवन लीला से संबंधित है। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के प्रिय शिष्यों में से परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी के मुखारविंद से हमने श्रवण किए। मायापुर में एक दिन हम कचौरी और लड्डू ले जा रहे थे, तो परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने बोला ये कहाँ लेके जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं रोज प्रभुपाद जी को लड्डू कचौरी अर्पण करता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है जो भी मुझे कचौरी और लड्डू अर्पण करेगा उनके पर मेरा सदा आशीर्वाद रहेगा। तब परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने मुझे रोका, बोला इसी से संबंधित मैं एक लीला बताता हूँ जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाया था और बताया। प्रभुपाद जी के तिरुभाव लीला के समय है लगभग 1977। प्रभुपाद जी ने पिछले 2 महीने से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, केवल यमुना का जल और थोड़ा सा चरणामृत लेते थे, ऐसा समय है। तो प्रभुपाद जी ने अपने प्रिय सेवक से कहा देखो जरा आज कृष्ण बलराम जी के लिए क्या अर्पण किया जा रहा है। तो तुरंत गुरुमुख का पद्म वाक्य तो दौड़े गए, बोला प्रभुपाद जी आज समोसा गरम गरम और कचौरी गरम गरम कृष्ण बलराम को अर्पण किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये आज का जो है महाप्रसाद मुझे चाहिए। अब भक्ति चारू महाराज ठीक 12:30 बजे दौड़े जा रहे हैं। तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज और ब्रह्मानंद स्वामी ऊपर चढ़ के आ रहे, बोले कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है गुरुदेव का, प्रभुपाद जी के को कुछ हानि तो नहीं हुआ। तो बोला नहीं नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको गरम गरम कचौरी और समोसा चाहिए। तमाम कृष्ण महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा बिल्कुल नहीं, 2 महीने से प्रभुपाद जी ने कुछ खाया है ना पिया है, तला हुआ यह समोसा और कचौरी खाएंगे तो ये इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। अब बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ गए भक्ति चारू स्वामी महाराज। एक तरफ उनके बड़े गुरु भाई जो कि पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, और एक तरफ गुरुदेव का आज्ञा है, अब करे तो क्या करे। तो तेषाम सतत युक्तानाम भजनताम प्रीति पूर्वकम। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज ने अपना सोचा ना इनको मना करूं और मैं गुरुदेव का वाक्य को पूरा कहूं। तो थोड़ी देर के लिए कबड्डी 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 होने लग गया और पकड़ा पकड़ी जैसे होने लगा। नहीं नहीं जा सकते हो, जा सकते प्लीज प्लीज नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, जा सकते नहीं जा सकते। और किसी भी तरह से पहुंच गए कहाँ पर, कृष्ण बलराम जी के, और गरम गरम समोसा कचौरी लेकर आए। अब तमाम कृष्ण महाराज और ब्रह्मानंद स्वामी खड़े थे, पर किसी कारण से कुछ महत्वपूर्ण सेवा आ गया तो उनको जाना पड़ा और तुरंत पहुंच गए श्रील प्रभुपाद जी के पास ठीक 12:35 में। और प्रभुपाद जी ने देखा, उनके चेहरे में बहुत सुंदर मुस्कान आया और जिस प्रकार से गरम रोटी और को प्रभुपाद जी टेस्ट करते थे और उन्होंने कचौरी को जैसे ही अपने दिव्य उंगलियों से स्पर्श किया करके जो है बहुत वाप आया और समोसा से भी वाप आया और प्रभुपाद जी ने ये बहुत ठीक है। अब शाम के समय तमाम कृष्ण महाराज ने पूछा अब अगर प्रभुपाद जी को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। तो पूरा रात भक्ति चारू स्वामी महाराज सो नहीं पाए, वो तड़पने लगे क्या होगा अब क्या होगा। तब भक्ति चारू स्वामी महाराज क्योंकि बंगाल से हैं और प्रभुपाद जी के गुरु बहन और प्रभुपाद जी के बहन पिछिमा माता भी वहीं पे थे, तो रो रो के गए अब गुरुदेव को क्या होगा। तो पिछिमा माता ने कहा, पिछिमा माता जी ने कहा कि डरो मत, मेरा भाई पत्थर को भी खाएगा, वो अच्छी तरह से पचाएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा।
जीवेरत राम सुनिए छी साधु गुरु मुखे। वैष्णव की गुणगान करने से ही हम जैसे बद्ध जीवों की उद्धार होता है। भक्तियार महाराज श्री प्रभुपाद जी की तरह अंतरंग पार्श्वधर्म का प्रभुपाद जी अंतरंग जो सेवकों में अन्यतम थे। कई बार हम सुन चुके जैसे भक्ति और नारायण महाराज बता रहे थे कि तमाम कृष्ण महाराज के सेक्रेटरी थे, वो सर्वेंट थे, बहुत क्लोज अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी के। और खुद कम समय में बड़े प्रभुपाद जी के इतने क्लोज और बहुत अंतरंग बने थे। जैन के थे प्राय 1976 एंड में 1977 में बहुत कम समय में 4 महीने में प्रभुपाद जी ने कुछ तीनों दीक्षा दिए थे, जैसे हरिनाम, ब्राह्मण और संन्यास एक साथ। और हम देखिए कि इनकी प्रणाम मुद्रा कहते को प्रभुपाद गतः प्राण, संपूर्ण रूप में इनके जीवन प्रभुपाद जी की सेवा में नियोजित था। और उस किस प्रकार प्रभुपाद के समस्त भावना जो कि चिंतन को उन्होंने ठीक से समझने में निपुण थे। और इसको आप प्रभुपाद जाने के बाद भी कैसे इस्कन का सुरक्षा, इस्कन कैसे सभी लोग एक इस्कन को ही केंद्र, प्रभुपाद जी को ही केंद्र करके इस्कन का जैसे कि ऐसा ही 10,000 साल के लिए जैसे प्रभुपाद जी के गुणगान होते रहे, तो इसके लिए बहुत प्रयास किए थे उन्होंने। इसलिए उन्हीं की भावधारा से आज भी इस्कन में जो सिस्टम है जिससे को बहुत प्रभावित होकर कि प्रभुपाद इन सेंटर वो है विशेष रूप में महाराज की जो प्रोग्राम था उन्होंने इसके लिए विशेष भूमिका निभाई इसके में कि प्रभुपाद इन सेंटर एंड इस्कन को जो है responsibilities in helping to shape us into Vaishnavas gradually, and so we always looked forward for his arrival in Los Angeles. And in later years, when I came to India, then I actually was fortunate enough to be also there when he opened his Ujjain Mandir, and he was also kind to the lady devotees too, the God sisters, and he made sure that we had everything that we needed during the festival. And it was such a wonderful event, such a deep impression of a Vaishnava festival. For his recovery, continuing service and a cure, we sought discovery. How will we survive without Prabhupada to lead? Helpless children, we now saw our Father in need. A gloom upon us all, we sought a way to please Srila Prabhupada with all our words and deeds. In India, a new frontier with temples hardly built. His aim so great, but hardly his dreams fulfilled. Mayapur construction, merely one building manifest. A township of 10,000, planetarium and the rest. How were we to do it all without commander-in-chief? We saw so little done, and we saw so little done, and उसके पश्चात प्रभुपाद के अंतिम समय में श्री महाराज उनकी व्यक्तिगत सेवा कर रहे थे। उनके लिए प्रसाद प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने श्री प्रभुपाद का संग और अत्यंत घनिष्ठ संग प्राप्त किया। ये उनका सौभाग्य था कि श्री प्रभुपाद ने उनको सर्वप्रथम आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री भक्तिचरण साईं महाराज के आविर्भाव दिवस पर उनका
गुणगान करके अपने को शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वस्तुतः वैष्णव का गुणगान करना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे ही हम शुद्ध होते हैं। इस प्रकार भगवान के गुणगान से हम शुद्ध होते हैं, उनके भक्तों के गुणगान से भी हम शुद्ध होते हैं। इसलिए भक्ति से महाराज इसके के गौरव है, जो अति अल्प समय में प्रभुपाद के प्रिय शिष्य बने, क्योंकि उन्होंने 1976 साल में इस्लाम में योगदान किया था। There is a saying that you can tell the tree by its fruit. So we can tell how great Srila Prabhupada is by creating many or producing many fruits. And Srila Bhakti Charu Swami Maharaj is one of them. We should take advantage of the remaining fruits still around, getting their association, serving them, hearing from them, because we've heard also that for the next few years there will be a lot of crying in ISKCON because of the hard work and sacrifices that the disciples, direct disciples, for the rest of the devotees on the lampstands. So we can all stand up now for Pushpanjali. The flowers please circulate. नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर भक्ति चारुपदम् एष पुष्पांजलि समर्पयामि। ये आज का प्रसादम। आगे 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 दूध मांगोगे तो खीर देंगे। आगे आगे तो मुझे प्लेट दिखाओ, प्लेट बहुत चावल है। वीडियो
तो भक्ति चारू स्वामी महाराज के व्यास पूजा का ये प्रसाद है। राइस और पूड़ी नहीं लिया मैंने।